परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए तालियों के साथ पवित्र आत्मा को पुकारे कि परमेश्वर जैसे आपका वचन बताता है, आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वो आत्मा दिए चाहता हूं जो कि तुम्हारी मददगार करेगा, जो तुम्हें संभालेगा, तुम्हें चलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। अपने हाथों को उठाएं और पुकारें कि पवित्र आत्मा आप हमें आज सिखाएं कि कैसे हम अपने परमेश्वर के ग्रहण योग्य उस आराधना को करने पाए। रुआ रुआ मुझ में बस जा, रुआ रुआ मुझ में बस जा, रुआ रुआ मुझ में बस जा।
तारीफ करें, क्योंकि आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में, जोर से तारीफ करें। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि आप सेम नहीं जाएंगे? कितनों को विश्वास है? तारीफ करें एक बार जोर से तारीफ करें और सब बैठ जाए। सब ध्यान से गवाहियों को सुनेंगे हम सब। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬॉय ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਬ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। 3 ਆਪਰੇਟ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂਗਾ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਧਰਮੀ ਕਾ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੀਜੀਆਈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਕੈਨਿੰਗਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਕੇ ਬੱਚਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, डॉक्टर नहीं कर रहे और बेबी बिल्कुल ठीक है। ना भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 साल बाद बेबी होया, 7 साल बाद बेबी भी। हाँ जी। डॉक्टर भी हैरान सी कि बच्चा कितना बिल्कुल शौक है इसी डॉक्टर। जब पापा ने प्रोफेसी पाई सी फेसबुक पे कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। और सरप्राइज ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ सब जोर से। हालेलुया। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਯੂਰਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2008 ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਖਾਰਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਮਾ ਸੋਨੀਆ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਖਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਖਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਖਤ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
रंग का सूट पाया आ। उस वेले मैनू कुछ समझ नहीं आई, मैं आमीन जरूर किया। मेरे पति हमेशा कहते तू आमीन कहंदी पढ़ते पढ़ते ते कन्ना दे, मैनू पता सी मेरी आमीन दे विच मेरा छुटकारा आ। ते फिर मैं विश्वास किया, जदों मैं घर गई मेरे यूरिन नहीं लगा, मैं फिर थोड़ा जिहा ठंडा अपने आप नू महसूस किया। ठंडा गन तो महसूस, दूए दिन शुक्रवार शाम नू एलर्जी कित्थे गई मैनू कुछ भी नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿੱਕੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ पेट तो नीचे वाले क्या ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी, मैं स्किन कलर दा लाइट गोल्डन सूट सीगा मेरे 2008 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ प्रॉब्लम सी। हाँ जी, और उसके बाद ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है जा ਹੁਣ चुकी है। मैं ਹੁਣ बहुत ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ परेशान- ठीक हो। पूरी तरह आजाद हाँ। तारीफ करें परमेश्वर की, सब जोर से तारीफ करें। ये तारीफ नहीं है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਪੰਪ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਟ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। मैं दवाई खाती रही और परमेश्वर ते विश्वास रखा कि ये भी एक ना एक दिन छुट्टूगी। जिथे परमेश्वर ने मेरा पंप छड़ाता वो मेरी दवाई भी छड़ाऊगा। मैं इस तरह प्रार्थना च कहती हुंदी सीगी। अज तो 1 महीना पहला पापा ने प्रोफेसी की कि अस्थमा की बीमारी जा रही है। मैं उन्होंने रिसीव किया, उस वक्त मैं चंगी हो गई। मैं पूरे चर्च का गेड़ा लाया और मैनू कोई साह नहीं चढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक सी। अज 1 महीना हो गया, मैं कोई दवाई नहीं खाती, बिल्कुल भी मैं ठीक हाँ। सब तारीफ करें जोर से। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ हाँ जी 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। हाँ जी बस जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ 15000 ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 8000 ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ 15000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਅਗ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 9000 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ और और कंपनी जा चुके हो। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देता हूं। आज मैं सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देता हूं, सारा जलाल परमेश्वर के नाम को देता हूं। अपने दोनों हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी में इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बचा के रखा है परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करता हूं परमेश्वर। दोनों हाथों से अपने दिल से परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देता हूं। मैं जानता हूं आपका आत्मा मुझे छूने जा रहे हैं। आज अंगीकार करो अपने दोनों हाथों को उठाते हुए सब जन,
अपने हाथों को उठाते हुए करो तारीफ सब जन फिर से। बोलो परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में हूँ, आज मैं चाहता हूँ आप मुझे छुएं। मैं सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ परमेश्वर। ऊंची 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 आवाज में पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे आ रही है आज। धन्यवाद यीशु। बोलो मैं तारीफ करता हूँ परमेश्वर आपकी। आप मेरी जिंदगी में काम करने जाने परमेश्वर मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मेरा घराना आपकी तारीफ करता है परमेश्वर। आप मुझे ऊंचा करने जा रहे हैं, आप मुझे आशीषित करने जा रहे हैं। बोलो अपने हाथों को उठाते हुए सब जन आपकी तारीफ आज जानी चाहिए आसमान तक। एडवांस में तारीफ करो परमेश्वर की, जो आप चाहते हो आपके लिए करें। जो काम वो कर चुके उसके लिए तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। बोलो यहाँ परमेश्वर मैं आपकी तारीफ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आपकी तारीफ करता हूँ, तारीफ करती हूँ परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए फिर से तालियों के साथ परमेश्वर मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आप एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं जो आपके दुश्मनों को शर्मिंदा रखेगी। आपका मीन छोटा चर्च परमेश्वर का आत्मा आपके घराने में कार्य करने जा रहे हैं, वो आपके बिजनेस में कार्य करने जा रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे वो कार्य करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हीलिंग वॉलंटियर्स आपकी लाइफ में आ रही है, आप वॉलंटियर आप खड़े हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं। आप बीमार, आप एक बहन है, आप मैरिड नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं और आजाद कर रहे हैं। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो चीज जो शैतानी आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घराने को छोड़ के जाते रहे, नशे की आत्मा को छोड़ के जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई वॉलंटियर किसी को रोकेगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा पे आए अभी राइट नाउ और आप सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे आए यीशु मसीह के नाम में अभी। यस वो आपकी अगुवाई करे, वो आपकी अगुवाई करे, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। Masuko makande na banana masume mente na menda na masuko bakunto na bende nebis rakuna na masaka makande nikina na masuka makanda na masume me rabina na masuka makanda na ba riba basuka makande na banana masuke na belda na masume mente nakuna na masaka makanda na bakuna nebe rabina na basuke rambuna na masaka makanda na ba shibakulu nebe rakina na masuka makanda na ba रबीना नमासुका मखानते नबा। सिचुएशन चेंज और रिपोर्ट्स बदल जाए आपकी, रिपोर्ट्स चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो बात जो नेगेटिव बोली है शैतान ने वो पॉजिटिव में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, गुड में बदल जाए। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी से कार्य न कर सके, आपकी जिंदगियों में काम न कर सके यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का ब्लड बोले आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए। उसका ब्लड आपके लिए बात करे, यीशु मसीह का खून आपके लिए बात करे। वो आपको छुपा के रखे, सुरक्षित रखे, प्रॉस्पर करे वो आपको, वो चंगा करे आपको, आजाद करे आपको। वो आपकी अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं शैतान की हर चाल को जो आपकी फैमिली, आपकी जिंदगी में, मैं उसे कैंसिल करता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा मैं से कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आप वो काम देखे जो आपने पहले कभी नहीं देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वो आशीष देखे जो आपने पहले कभी नहीं देखी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की आत्मा के झरने आपके जीवन से फ्लो करे, आपके होठों से फ्लो करे, जीवन जल के सोते आपके जीवन से बहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आपको जीवन जल का सोता बना दे, आपके अंदर झरने बहे, जीवन जल के सोते बहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाई का सोता आपसे बहे जब आप बोले, आशीष का सोता आपसे बहे जब आप बोले। आपके सारे डिप्रेशन आज आखिरी रात है उनकी, वो जा रहे हैं सदा के लिए बैग करके वापस ना वो आएंगे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने हाथों को उठाओ।
आज फिर जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने कहा जब तू जाएगा हीलिंग शुरू हो जाएगी। आपकी रसौलियां जा चुकी हैं, आप एक बहन है, आपकी रसौलियां जा चुकी हैं, आपके अगर आप बॉडी को अपनी चेक करो, आपकी रसौलियां जा चुकी हैं। आपके माथे का दर्द, आपकी आंखों के बीच जो माथे का दर्द है, ये सीवियर पेन है, ये आसान दर्द नहीं, ये आम दर्द नहीं, आम माथे का सिर का दर्द नहीं। परमेश्वर आपको छू और आजाद कर रहे हैं। आपकी किडनी प्रॉब्लम जा रही हैं, आपकी पथरियां जा रही हैं, आपके पित्त की पथरियां गायब हो रही हैं। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ और छूट जाओ। मैंने कहा छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मानो जाओ, आपके घराने छूट जाए। अगर आपका आमीन आसमान तक पहुंचेगा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपके घराने छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर चाल से, हर बंधन से छूट जाए। हर वो आत्मा जिसने आपको धीरे डिले में रखे, देरी में रखे, हर वो आशीष जो लोगों को जल्दी मिल जाते और वही आशीष आपको देरी से मिलती, वो डिले का आत्मा आज मैं परमेश्वर का दास होने करते बोल रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ से आज वो श्रापित आपकी जिंदगी से कभी ना आएगा वापिस। हो डिले की आत्माएं, देरी की आत्माएं, श्राप की आत्माएं, उनका कोई अधिकार नहीं आपकी जिंदगी के ऊपर। बोलो कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी के ऊपर। दुष्ट आत्माओं का, शराब की आत्माओं का, नशे की आत्माओं का, तेरी की आत्माओं का मेरी जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। बोलो 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 बोलो, मैं आजाद हूं, मैं फ्री, मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। हर कर्ज की आत्मा से, श्राप की आत्मा से, डिले की आत्मा से, देरी की आत्मा से मैं आजाद हूं। बोलो 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 बोलो। अगले आप है जो गवाही के साथ मुझे मैं आते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो बोलो बोलो, मैं फ्री हूं, मेरा घराना फ्री है हर श्राप से। यीशु मसीह ने मेरे श्राप तोड़ दिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे श्रापों को तोड़ दिए। क्रूस पर से उसने मेरे सारे श्रापों को खत्म कर दिए। अपने ब्लड पर से, अपने ब्लड बहाने से उसने मेरे हर श्राप को खत्म कर दिए। मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मेरा घराना आजाद है, मेरा बिजनेस आजाद है, मेरी जॉब आजाद है, मेरा फाइनेंस आजाद है। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ वो आजाद है। हर शर्मिंदगी जो मेरे साथ जुड़ी है आज वो मेरी जिंदगी से जा रही है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दी है। हर डिप्रेशन जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। मांगो 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 ऊंची आवाज में बोलो, डिक्लेयर करो अपने दोनों हाथों को उठा के क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। डिक्लेयर करो, घोषणा करो, मैं आजाद हूं, मेरा फाइनेंस आजाद है, आजाद है मेरा फाइनेंस, मैं आजाद हूं, आजाद हूं, मैं आजाद हूं। जिस नए रेलम में, जिस नए क्षेत्र में आप पैर रखने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। वो आशीष मैंने कहा वो आपको हैरान कर देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से आते हैं। जब उत्तर आएगा आप हैरान होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ नशे की हर आत्मा से युद्ध। आपका नशा आज से बाइबल होगी, उसका वचन होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका नशा प्रार्थना होगी, बाइबल होगी, रोजे होंगे, सामर्थ होगी, वरदान होंगे। वो नशा आज जा रहा है सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ। Be delivered in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Be free, be free, be free, be free। हर जादू टोने का आत्मा बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। अगर दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, आज आखिरी रात है, अपनी बॉडी पे हाथ रख लो, आप आजाद होने जा रहे हैं। मैंने कहा बी फ्री। दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने और चिल्लाएं और बाहर आ जाएं और सदा के लिए बाहर आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों के हाथ उठे वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। कोई वॉलंटियर किसी को रोकेगा नहीं। कोई उठना चाहता है उठ सकता है, बैठना चाहता है बैठ सकता है। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। आपके घराने आजाद हो दुष्ट आत्माओं, जादू टोने के बंधनों से।
Be free. La kamakana na manana masakamakana na manana masakamakana ne. In the case the kamakunda ne be free. Be free, be free, be free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में be free. आजाद हो जाओ. Yes. हर दुष्ट आत्मा बाहर आए इस ग्लोरी के नीचे, इस महिमा के नीचे. मैं कमांड करता हूं बाहर आए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में. Yes. Let the Holy Ghost take over. आपके लाइफ में पवित्र आत्मा आपको आप पे कंट्रोल कर ले. आज से शैतान जाए. मैंने कहा वो जाए. In the name of Jesus. Miracles, miracles everywhere. आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स में, आत्मिक जिंदगी में miracles. वो miracles जो आपके मुंह को खोल देंगे गवाही देने के लिए. आमीन छोटा है. I said miracles, miracles everywhere. Miracles in your homes, in your business, in your job, in your spiritual life, in your family. Miracles, miracles. I speak miracles. हर बीमार खड़ा हो जाए और चंगा हो जाए. व्हील चेयर से उठ जाए, छड़ियों से उठ जाए, स्ट्रेच से उठ जाए. आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में. Be free, be free. I said be free, be free. हड्डियों के रोगी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में. हड्डियों के रोगी आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Be free. हड्डियां जुड़े, कैद खत्म हो. हड्डियां जुड़े. अर्थराइटिस के रोगी चंगे हो. जो आप नहीं कर पा रहे थे आप कर पाएंगे. वो शर्मिंदगी आपकी जिंदगी में आज आखिरी जाता वो खत्म है यीशु मसीह के पवित्र नाम में. मैंने कहा वो खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Be free, be free in the name of Jesus. बाइबल बताती है हमें नाम दिया गया है. हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊपर है. आपकी बीमारी का नाम है. आपकी बीमारी जिसको गठिया कहते हैं उसका नाम है. उस नाम से ऊपर यीशु मसीह का नाम है. उस गठिया के नाम को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ. वो घुटने टेके और जाए और यहाँ से चली जाए और सदा के लिए जाए, परमानेंट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आप एक बहन रसोलियां गायब हुई हैं आपकी बॉडी से. आपके छाती के एरिया से वो रसोलियां गायब हो रही हैं और आप बिल्कुल 100% बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं. हर दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और जाए यीशु मसीह के नाम में इस ग्लोरी के नीचे. आज हेवन हमारे लिए खुले हैं. रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में. ग्रहण करते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में. मैंने कहा हेवन हमारे लिए खुला है. आज ग्लोरियस हेवन हमारे लिए खुला है. बाइबल बताते हैं धरती पे 2 जन एक मन होंगे जो मेरे पिता से मांगेंगे मेरे पिता उन्हें देगा. बाइबल बताती है जो धरती पे खोलेगा मैं आसमान में खोल दूंगा. आपका हर शर्मिंदगी का रास्ता इस धरती पर बंद हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में. हर एक इज्जत का रास्ता इस धरती पे खुल जाए और आसमान में खुल जाए. हर एक बेइज्जती का रास्ता इस धरती पे बंद हो जाए, आसमान में तो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. हर बांझपन का रास्ता इस धरती पे बंद हो जाए और वो आसमान में आज बंद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. अपने दोनों हाथों को उठा बोले मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं उन बड़े कामों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं. मैं अपनी आत्मा को खोलता हूं, तैयार करता हूं उन बड़े कामों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं. मैं वेलकम करता हूं परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में कि वो कुछ भी जो वो चाहे वो कर सकता है. वो आजाद है मेरी जिंदगी में. मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसे रोकूंगी नहीं. वो फ्री है,
मेरी लाइफ में कुछ भी करने के लिए। मांगो मांगो इन अंगीकार करते हुए। करो करो अंगीकार। अगर इस समय आपके होंठ खुले, आपके दरवाजे खुल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके होंठ खुले, आपके रास्ते खुले इस समय। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू करो, अंगीकार करो सब परमेश्वर के सामने। बोलो मैं तैयार हूं। जो परमेश्वर मेरी जिंदगी में करने जा रहे हैं, मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसे रोकूंगी नहीं। यस 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 यस, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, मैं जानता हूं। अगर आप चाहे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं, उसकी सामर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को पकड़ेगा नहीं। Be free, be free, be free in the name of Jesus. अपने हाथों को उठा, मेरी ओर मत देखो। और मैं तैयार हूं उन कामों को करने के लिए, देखने के लिए, और मैं पवित्र आत्मा को रोकूंगा नहीं। बाहर अपना काम करें। यस बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मूव करने के लिए, लोगों को छूने के लिए। आपके गर्दन की वो दुष्ट आत्मा आपकी गर्दन को छोड़ के जा चुके हैं। आप हील हो चुके हैं, आप पीछे बैठे हैं, आप हील हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो सके, और मैं आपको बिल्कुल रोकूंगा नहीं। मैं आमंत्रित करता हूं, आपको इनवाइट करती हूं, आप आओ, मेरी जिंदगी में वैसे काम करो जैसे आप चाहते हैं। मेरी जिंदगी रूपी गाड़ी में स्टीयरिंग आपके हाथों में है, मैं उसे अपने हाथों में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पास बैठे रहें और गाड़ी में चलाऊं। मैं आपके पास बैठूंगा और आप चलाएंगे, और मैं देखूंगा और देखूंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर हालेलुया ऊंचे तो आप गवाही के साथ आने में निकाल। हालेलुया, आमीन। आज आपकी रात है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं वो बड़े काम देखने के लिए
जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आमीन। जो खड़ा है वो खड़ा रहे, जो बैठा है बैठा रहे। सुनो सिर्फ ध्यान से। आमीन। एक आम व्यक्ति को भी पता चल रहा है कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है। अपनी गवाही ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। अगले आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिखाया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। हाँ या ना? और बाइबल में लिखा, जब उसे दर्शन आया उसके बाद उसकी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई और उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसे मरने के लिए, छोड़ने के लिए। उसके बाद उसको निकाला और उसको बेच दिया। हाँ या ना? अब शैतान पूछ रहा था यूसुफ से कि कहां है तेरा दर्शन जो परमेश्वर ने तुझे दिया था, जो प्रभु ने तुझे कहा था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तू तो बिल्कुल नीचा हो गया, अब तो तू नौकर बन गया, तू एक नौकर की तरह बेच दिया गया है इश्माइली लोगों के, उन लोग दूसरे लोगों के हाथों में। तुझे ऊपर जाना चाहिए था पर तू नीचे चला गया। और जब गुलेल से पत्थर आगे फेंक रहा हो, सबसे पहले वो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? आप आगे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका पीछे आना पीछे जाने की निशानी नहीं था, वो आगे जाने की तैयारी थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका धर्म आगे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपका जॉब आगे जा रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रमोशन आपके रास्तों में खड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको पीछे खींचते हैं गुलील की तरह, तो वो आपको पीछे नहीं खींच रहा होता, वो आपको आगे लेके जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप आगे जा रहे हो अपनी सेवकाइयों में। आपका आमीन छोटा चर्च। हालेलुया। तब जानते क्या हुआ? वो जेल में चला गया। पोतीफर की पत्नी के साथ उसको इल्जाम लगा दिया गया क्योंकि वो सोया नहीं, उसने पाप नहीं किया। कुछ लोग सोचते हैं मैं पाप नहीं करता हूं लेकिन फिर भी दूसरे लोगों से मैं नीचा क्यों? मेरी जिंदगी में मुसीबतें ज्यादा हैं जबकि मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं। बाइबल बताती है फिर उसे दो व्यक्ति मिले, एक राजा का खवाऊ, एक राजा का प्याऊ। जो राजा को खिलाता था दूसरा राजा को पिलाता था। उन्होंने कहा हमें स्वप्न आए, हमें दर्शन आए, लेकिन मतलब नहीं पता। बाइबल बताती है यूसुफ ने जेल में दोनों के अर्थ बताए। हाँ या ना? दोनों के अर्थ बताए। उस खाने वाले को बोला कि तू मर जाएगा, पिलाने वाले को बोला कि राजा फिर से तुझे वही जगह देगा वापस। और वैसा ही हुआ। और यूसुफ ने यह सोचा कि अब मेरे दर्शन जो मैंने बताए थे, जो प्रभु ने मेरे द्वारा मिरेकल्स किए थे, अब उसका फजल मुझे, अब उसका असर मेरी जिंदगी में होगा। अब मैं याद किया जाऊंगा राजा के द्वारा। पर ऐसा हुआ नहीं। जो राजा का खिलाने वाला था वो गया और राजा ने उसे सूली पे चढ़ा दिया जैसा यूसुफ ने उसे बताया था। जो पिलाने वाला था राजा ने फिर से उसे अपनी जगह पे वापस कर दिया जैसा यूसुफ ने उसे बताया था। लेकिन वो भूल गया यूसुफ के सारे कामों को। कई बार आप सोचते हैं ये लास्ट, बस ये लास्ट, इसके अगर अब आशीष ना मिले तो मैं खत्म हूं। अगर अब वीजा ना लगा तो मैं फिनिश हूं। बाइबल बताती कुछ वर्षों के बाद जब राजा को एक ऐसा स्वप्न आया जिसका अर्थ कोई पंडित, कोई जादू करने वाला बता नहीं पा रहा था, तो उसी पिलाने वाले ने कहा राजा दोस्त, इतने साल पहले एक व्यक्ति मुझे जेल में मिला था जिसने मेरे प्रार्थनाओं का, जिसने मेरे दर्शनों का अर्थ मुझे समझा दिया था। अगर तू उसे बुलाए तो वो तुझे तेरे दर्शन का मतलब समझा सकता है। वो आपको आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से उत्तर देने जा रहे हैं। इसलिए वो लोग टिके नहीं रह पाते जो अपने हिसाब से उत्तर मांगते हैं।
जिनकी अपनी टाइमिंग है उत्तर लेने की कि अब हाँ मुझे अब वीजा मिलना चाहिए, हाँ अब मेरी रसौली खत्म होनी चाहिए, अब टाइम हो चुका मुझे बच्चा मिलना चाहिए, अब टाइम हो चुका मेरा बिजनेस ग्रो करना चाहिए, अब टाइम हो चुका मेरी सेवकाई ग्रो करनी चाहिए। नो 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 नो, आपने अपना काम कर दिया है, यूसुफ ने अपना काम कर दिया था, टाइम आने पे फल आया। आपका काम बोना है, फसल देना परमेश्वर का काम है। आप फसल काटे बिना जाएंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका एनिमी भी देखेगा आपकी फसल को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यूसुफ का काम था बोना, उसने बो दिया। क्या बोया उसने? उसने अर्थ बताया प्याने वाले को कि तेरा अर्थ ये है कि राजा फिर से तुझे वही कुर्सी दे देगा, तेरी गलती माफ हो जाएगी, तू खत्म, तेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अब यूसुफ सोचता था कि अब उसने एक बड़ा काम किया है और उसके दर्शनों का जो अर्थ उसने बताया था वो सही निकला है, जो भविष्यवाणी उसने की थी वो बिल्कुल सही थी। अब उसे कुछ फल मिलना चाहिए और राजा अब उसे बुलाएगा और याद करेगा। लेकिन बाइबल बताती वो भूल गया। उसने बताया नहीं राजे को कि राजा आज मैं जिस जगह पे हूं इसका अर्थ मुझे एक जेल में बैठे बंदे को परमेश्वर के दास ने बताया था। लेकिन टाइम आते हैं, मैंने कहा टाइम आते हैं, अब कामीन छोटे हैं। मैंने कहा टाइम आता है हर यूसुफ का, आपका भी आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा टाइम आता है यूसुफ का, आपका आने वाला टाइम वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अगर बड़ा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके परिवार से बात कर रहा हूं फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग बोलते मैंने मदद की, मैंने फलाने की बहुत मदद की, आज वो चला गया, आज वो 10 साल से फॉरेन में, लेकिन उसने मुझे कभी याद नहीं किया, मैंने कभी हेल्प नहीं की। डोंट वरी, आपका टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। लोग बोलते मैंने उसकी बड़ी मदद की थी अपने बिजनेस में, जब मैं और वो दोनों एक लेवल पे गए मैंने उसकी बड़ी सहायता की थी, आज वो ऊपर चला गया और मैं यही रह गया हूं, लेकिन उसने मुझे कुछ पूछा नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपका टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका टाइम आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए जो लोग परमेश्वर पे निगाहें रखते हैं उनका इंसान के ऊपर निराशा होने कभी नहीं होती। इसलिए यूसुफ इंसान से निराश नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा तूने मुझसे मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि यूसुफ जानता था कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। यूसुफ जानता था गॉड्स प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स। वो जानता कि उसका काम है प्रार्थना करना, एक विश्वासी का काम है प्रेयर करना, उसका काम है फास्टिंग करना, उसका काम है अगर कम प्रार्थना उत्तर ना दे तो क्या करें? क्या करें? ज्यादा करो। अगर ज्यादा उत्तर ना दे तो क्या करें? तो और ज्यादा करो। आपको और ज्यादा करनी है यीशु मसीह के नाम में, हारना नहीं है। लोग सोचते मैंने उसकी बड़ी हेल्प की थी लेकिन आज उसने मेरी कोई सहायता नहीं की, और लोग निराश हो जाते हैं लोगों से, फिर लोगों पे गुस्सा निकालते हैं कि उसने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि ये नहीं जानते कि आपकी हेल्प ऊपर से आनी है। जरिया एक इंसान होगा, क्योंकि परमेश्वर इंसानों को ही इस्तेमाल करता है। वो डायरेक्ट ऊपर से आपको कुछ नहीं भेजेगा, पर वो ऊपर से एक व्यक्ति को, उसके दिमाग को उसकी चाबी घुमा देगा कि वो आपके पास आए आपकी हेल्प करने के लिए। आपके पासपोर्ट ब्लेस है, आप जान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए दाऊद निराश नहीं हुआ अपने लोगों से। वो लोग जो कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, जिन्होंने दाऊद का साथ दिया और दाऊद ने उनका जब साथ दिया, लिखा वो उदास नहीं रहे, वो कर्जाई नहीं रहे। लेकिन जब वो ब्लेस हो गए और एक दिन उनकी जिंदगी पर बड़ी मुसीबत आई, वही लोग दाऊद को मारने की प्लानिंग करने लगे। पर दाऊद निराश नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता रहा कि मेरी जिंदगी में कोई मुझे छू भी नहीं सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। इसलिए यूसुफ निराश नहीं हुआ ये बोल के कि मैंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की और वो पूरी हुई दोनों की जिंदगी में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे याद नहीं किया। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत में कि हिया बांध और दृढ़ रहे, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत तेरी व्यर्थ नहीं जाती है। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है, आपकी फास्टिंग व्यर्थ नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में आपने 2 सेकंड के लिए भी बताया, वो व्यर्थ नहीं है।
मैंने कहा वो व्यर्थ नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने 5 मिनट भी अगर परमेश्वर को दिए उसकी सेवकाई में, ये व्यर्थ नहीं। आपकी जनरेशन बदल जाएंगी, मैं आपको बोल रहा हूं, वंश बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर प्रॉब्लम वहां आती जब आप अपनी मेहनत के फल को अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपनी जिंदगी में देखना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कोई फल नहीं, जबकि परमेश्वर का आत्मा आपको यह बता रहा होता है कि अभी वो टाइम नहीं जो टाइम की तू इंतजार कर रहा है, जिस टाइम की तू वेट कर रहा है। कई बार आपका और परमेश्वर की सोच सेम है लेकिन टाइमिंग में फर्क है। परमेश्वर भी चाहते हैं इसको मैंने वीजा देना है, आप भी वीजा लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब टाइमिंग से पहले उसको एक्सपेक्ट करते हैं आप निराश हो जाते हैं। अगर उस निराशा में आपने लंबा चलने दिया, निराशा को लंबा चलने दिया, तो वो निराशा अगर शैतान के हाथों में आ गई, वो वीजा डिनाई भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, जो परमेश्वर के हाथों से निकलने। इसलिए जो ईमानदार लोग हैं, जो विश्वासी और बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी जो मेहनत है वो जानते हैं कि इसका फल परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से हमें मिलना है, अपने हिसाब से नहीं। इसलिए दाऊद लोगों से निराश नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा ओ जाओ दीपा जो थो, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, मैंने तुम्हें कर्जों से आजाद कर दिया, अब मेरी जिंदगी में मुसीबत आई और तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर दाऊद घर में ही लड़ना शुरू कर देता तो वो लड़ाई हार जाता जो परमेश्वर ने उसे जीतने के लिए दी थी। आपकी लड़ाइयां सही और सीधी हो जाएं, सीधी वाली जो शैतानी है, आमीन, जो आपको शैतान ने डिस्टर्ब करने के लिए दी है, आज से हर वो लड़ाई खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए दाऊद जानता था कि अब ये लड़ाई मेरे लोगों के साथ नहीं, मेरे अपने विश्वास के साथ है। मुझे अपने लोगों के साथ लड़ने की, बहस करने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे परमेश्वर के साथ फिर से, बाइबल में लिखा वो, तब वो परमेश्वर के पास गया और लिखा परमेश्वर के वचन को याद करके उसने हियाव बांधा, उसने हौसला किया। उसके पास कोई नहीं था उसको हौसला देने के लिए, कोई नबी उसके पास नहीं गया उसको हौसला देने के लिए, क्योंकि वो दूर था सब लोगों से। लेकिन बाइबल बताती है उसने परमेश्वर के वचन को याद किया और अपने आप को मोटिवेट किया। उसने 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 समझा परमेश्वर की बातों को, योजनाओं को। बताओ क्यों लिखी यूसुफ की स्टोरी, अगर आज हमें कोई फायदा नहीं है उस स्टोरी से, तो क्यों दाऊद की स्टोरी बाइबल में लिखी, अगर आज हमें उसका कोई फायदा ना होता। वो उसलिए लिखी गई है ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर के काम करने का तरीका और टाइमिंग कैसे होती है। हालेलुया। आज लोग निराश तब होते हैं जब अपने हिसाब से वो परमेश्वर के काम को तोलना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं और जांचना शुरू कर देते हैं कि मैंने 40 रोजे रखे, अब तक मुझे प्रार्थना का उत्तर आ जाना चाहिए था। मुझे 3 साल हो गए रोजे ये काम करते हुए, अब तक मुझे प्रार्थना का उत्तर आ जाना चाहिए था। अब मेरी भविष्यवाणी पूरी हुई। यूसुफ ने कहा अब मुझे इसका उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी किसी ने याद नहीं किया। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जो प्रभु में आपने की है, आपकी प्रेयर्स व्यर्थ नहीं है, आपका हालेलुया बोलना व्यर्थ नहीं, आपका आमीन बोलना व्यर्थ नहीं। यहां तक कि आप जैसे भवन में आए हो आज और खड़े हो और बैठे हो परमेश्वर की हुजूरी में, आपका ये व्यर्थ नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपको लगे या ना लगे कि आप चेंज हुए या नहीं हुए, आशीष आई या नहीं आई, मैं आपको बोल रहा हूं आप ब्लेस आशीष आ चुके हैं। आप उसे कब देखेंगे ये परमेश्वर की टाइमिंग बताएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप शर्मिंदा ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैंने कहा आप शर्मिंदा ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो इंसान के निराशा से निराश नहीं होते हैं। आमीन। वो जानते कि एक टाइम है मेरा, आपका वो टाइम गवाही का जल्दी आए, आप जल्दी आ सके हंसते हुए गवाही के साथ। आपका आमीन अगर हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा आप जैसा काम करेंगे उसी तरीके से मैं तैयार हूं उसे ग्रहण करने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठाते हुए।
ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। रात में भी परमेश्वर के भवन में आना आपका व्यर्थ नहीं है। आपका आमीन अगर ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन और तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मैं सुनूं वो 100 गुना फल लाए और ये फल बना रहे। मांगो 1 सेकंड के लिए, मांगो मांगो, होठों को खोल के ऊंची आवाज में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। जो मैं सुन रही हूं, जो मैं सुन रहा हूं वो 100 गुना फल लेके आए। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। मैंने कहा आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। आपके प्रेयर्स, अपनी आंखों को बंद, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना में जाओ। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। चर्च पीछे भी, जहां भी आप बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आपकी आवाज मुझे आती कि नहीं आती? आपकी प्रार्थनाएं कैसी हैं? जो मैं सुन रहा हूं वो 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर मेरी लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। सोनिया कौन? आपने अपनी गवाही में लिखा कि आपके हस्बैंड की जो मंथली इनकम थी वो पहले 9,000 थी और दुबई में उनका खर्चा मुश्किल हो पाता था और वो टेंशन में थे और वापिस आने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब आप प्रेयर कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जो आप मांग रहे हो वो नहीं, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आपको वो मिलेगा। हाँ जी। और मैंने आपसे कहा कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आपने बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके हस्बैंड जो है परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहे हैं और आप गवाही के साथ आओगे। हाँ जी। और उस प्रोफेसी के बाद क्या हुआ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨੀ ਅਗਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कंपनी चेंज हो गई? हाँ जी, कंपनी चेंज हो गई। तनख्वाह कितनी बढ़ी? 15,000 हो गई 9 तो। कई बार जब मैं लोगों के पास आता हूँ
कई बार ये प्रोफेसी इतनी डीप होती है, आपके इतने भाई इतनी बहन है, ये काम उनको लगता है शायद कि ये सच्ची है कि किसी ने बताया है मेरे बारे में। मैं खुद हैरान होता हूँ कई बार जब परमेश्वर आपको डिटेल बताते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो तू मांग रहे हैं वो नहीं। और मैंने आपको प्रोफेसी दी आपकी लाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। हाँ जी। उसके बाद आपके हस्बैंड का फोन आया, मैसेज आया। हाँ जी। कितनी देर बाद? प्रोफेसी के कितने दिन बाद? 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। आपकी बारी है अगली। अकामीन छोटे हैं। मैंने कहा कि अगली बारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। संडे, गिलगाल संडे आपके लिए प्रोफेसी हुई थी। हाँ जी। और आपने लिखा अब वो जॉब उनकी जो नहीं मिली, उनको ना टाइम बर्डन वाली भी नहीं है, उनको टेंशन भी नहीं है, वहां पे आसान जॉब है लेकिन पेमेंट ज्यादा है उसकी। हाँ जी। हाँ जी। दवा से। उसकी पेमेंट ज्यादा है पर बर्डन नहीं है, मतलब बोझ है नहीं का इतना। हाँ जी नहीं हैगा, जो ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री मिली, जिदा कोई गए नहीं। आपकी लाइफ रिलैक्स होने वाली है। आप जानते हैं एक्स्ट्रा लेबर करना ये परमेश्वर की ओर से नहीं, मेहनती बनाता है परमेश्वर आपको, लेकिन कुछ लोग लेबर कर रहे हैं एक्स्ट्रा लेकिन उनके पास वो फल नहीं है। प्रोफेटिक टाइम में मैं लोगों के पास है तो मैं बोलता हूं आपके हाथ मुझे लोहे के दिख रहे हैं, आप जो मांग रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आपके पास नहीं है। आप 10 डॉक्टर के पास गए हो, आपके बेबी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, आपको नीचा कर रहे हो वो, क्योंकि ऊंचा होने का टाइम जब आए आपको पता हो कि खुदा ने आपको क्या दिया है जो आपके पास है अभी। आपका मीन छोटे हैं, वो आपको 10 डॉक्टर के पास आपको ह्यूमिलेट करता है, वो आपको बेइज्जती महसूस होती दूसरे विश्वासियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कि आप क्रिश्चियन हैं और आपके पास ब्लेसिंग नहीं। पर परमेश्वर आपको लेके जा रहा होता है कहां पे? आपको बेइज्जती के नीचे से। आपको पता हो बेइज्जती किसे कहते हैं, क्योंकि जब ऑनर आपकी लाइफ में आए, जब सीट आए, जब कुर्सी आए, यूसुफ अली, आपको पता हो खुदा ने आपको क्या दिया, ये इम्पॉसिबल था जो आपको मिला है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आप जानते जब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी बहन को प्रोफेसी दे रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं किसी को प्रोफेसी दे रहा हूं। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आपके रिश्तेदारों ने देखा है, वो ब्लेस हैं और अन्य जाति हैं, आप वही वीजा की डिमांड कर रहे हो 6 साल से, आपका वीजा आने वाला मैं आपको बता रहा हूं। आपका आमीन छोटा मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। क्यों लेके आए परमेश्वर को? आपको यहाँ पे प्रोफेटिक आपको रिजल्ट पावर देते हैं, आपकी गवाही को फेरारी देते हैं। अगर वो साइकिल पे आ रही, वो गाड़ी पे आएगी अब जल्दी से। वो आ तो रही लेकिन साइकिल पे आ रही, आपकी गवाही के उस आने वाले उस जरिए को, वो साइकिल को मैं बदलता हूं एक गाड़ी में, एक फेरारी में। आपका आमीन छोटा है, अगर आपका आमीन ऊंचा हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको अलाउ कर रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं। जब परमेश्वर फिर आपको दे, आपको पता हो कि ये बड़ी ब्लेसिंग मुझे परमेश्वर ने दी है, तब शैतान जब भरमाने के लिए आए, आप जानते हो कि शैतान तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। अपने टाइम के हिसाब से नहीं मांगना है। कुछ लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके टाइम के हिसाब से उत्तर नहीं आया। जब मैंने आपको बताया कि जो आप मांग रहे हो आप नहीं, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है मैं आपको वो बताता हूं। हाँ जी। इसीलिए आपको परमेश्वर की हुजूरी में आने की जरूरत पड़ती ताकि आपको समझ आ सके परमेश्वर क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, पर परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहते हैं।
मैं आपको फिर प्रोफेसी दे रहा हूं। मैंने कहा आपको जब मिलेगा आप महिमा करोगे परमेश्वर की। आपको पता होगा ये परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। तब हम इतना देख चुके होते हैं, हमें पता होता है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिए हैं। फिर कोई अंधकार की शक्ति विश्वास नहीं हिला पाती, क्योंकि हम जानते हैं हम कहां से निकले, किधर से निकले, कहां से आए, कहां पहुंचे। हम जानते हैं परमेश्वर का हाथ था, अंधे का हाथ जो हमारे सिर के ऊपर था। हालेलुया। पनन्ना हनन्ना को चिढ़ा सकती है, हाँ या ना? चिढ़ा सकती है वो उसे कि तेरे बच्चा नहीं, पर उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। लोग आपको चिढ़ा सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। आपकी शादी लोगों के साथ नहीं हुई, मसीह के साथ हुई, वो आपको डाइवोर्स नहीं देगा। हालेलुया। मैंने कहा पनन्ना हन्ना को चिढ़ा तो सकती है, तेरे बच्चा नहीं, पर उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। डाइवोर्स उसका हस्बैंड दे सकता है, पर उसके हस्बैंड ने कहा नहीं हनन्ना, मैं तुझसे दुगना प्यार करता हूं। आपका आशीष ना मिलना अभी ये सबूत नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते, वो आपसे दुगना प्रेम करते हैं। उसने आपको डाइवोर्स नहीं दिए हैं। आप अपने शैमूल के साथ अपनी सारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका शैमूल आपके पेट में, आपके हाथों में होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका वीजा आपका शैमूल है, वो आपके हाथों में होगा, आप यहां खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बिजनेस आपका शैमूल है, वो आपके हाथों में होगा, आप यहां खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लोग आपको चिढ़ा तो सकते हैं, आपको बुरा तो कह सकते हैं, लेकिन आपको डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं। वो प्रभु के फजल को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो उसकी ग्रेस को खत्म नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, वो उसे पीछे नहीं कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं, सिर्फ उन्हें बोलने दो, परमेश्वर बोलेगा आपके लिए शैमूल के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो बोलेगा जरूर। परमेश्वर धीरे कई बार काम करते हैं, कई बार, हर बार नहीं। हालेलुया। वो बोलता है, जब वो बोलता है फिर देखो उसने फिर क्या बोला। जब शैमूल उसको मिला तो पनन्ना के बच्चे भी शैमूल के पास जाते थे। टाइम आया एक, यहां तक कि पनन्ना भी शैमूल के पास जाती थी। खुदा का ठहराया हुआ सेवक उस लैंड में, उस जगह पे सिर्फ वही था। ये मेरा परमेश्वर जो कर सकता है, वो मरा हुआ नहीं है, आज भी जिंदा है। शैमूल का परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो आपकी लाइफ में जिंदा है। मैंने कहा हालेलुया। लोग आपको डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी लोगों के साथ नहीं हुई। फिर कलीसिया की शादी कलीसिया के साथ नहीं हुई, मसीह के साथ हुई। वो आपको डाइवोर्स नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा आपको, दुगना प्रेम करेगा आपको शैमूल देगा। आपका आमीन छोटे है। हालेलुया। वो आपको भूला नहीं। आप 5 मिनट भी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, उसका असर आपकी लाइफ से कभी जाता नहीं। दिखता उनको नहीं जिनकी शारीरिक आंखें खुली, जिनकी परमेश्वर वाली आंखें बंद हैं, सिर्फ उन्हें नहीं दिखता, क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट की कामना रखते हैं। या जिस तरह ये बहन ने कहा कि मैं ये प्रार्थना करी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ और है, मैंने कहा जो तुम मांग रहे हो उसे साइड पे करो। केवल जो आप मांग रहे हैं ये नहीं, आप मांगना छोड़ दो, आपको वो मिलता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो ये मांग रहा है, जब तू प्रोफेसी करने जाए, ये ना सोचे कि जो ये मांग रहा है परमेश्वर, जब मैं बोलता हूं कि परमेश्वर तुझे गवाही के साथ लेके आ रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हो और तू इस तरह की गवाही, ये ना सोचे कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं शायद वो कबूल नहीं। परमेश्वर, मैंने कहा आप जो प्रेयर कर रहे हो उसे साइड पे रखो, जो प्रभु करना चाहता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, इसका मतलब अगला उत्तर शायद उसी प्रार्थना का हो। आप जानते हैं मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैंने कहा शायद अगला उत्तर उसी प्रार्थना का हो। आप जानते हैं आपका आमीन आपकी प्रोफेसी को फेरारी दे सकते हैं।
उसे गाड़ी दे सकता है, ट्रेन, फास्ट ट्रेन दे सकता है। हालेलुया। आप जानते गवाही क्यों जरूरी? क्योंकि जब हन्ना के जब शमूएल हुआ तो पनन्ना जो थी अब उसे चिढ़ाना बंद कर चुकी थी। अब पनन्ना खुद शमूएल के पास जाती थी। एक टाइम आ गया था, उसके बच्चे भी शमूएल के पास जाते थे, क्योंकि वो खुदा का ठहराया हुआ सेवक था उस जगह का। ये प्लान है परमेश्वर का आपकी लाइफ में, ये मास्टर प्लान है उसका आपकी लाइफ में। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर। एक एक या दो हम गवाहियों को सुनने की कोशिश करते हैं। कितने समझे आज के वचन को? परमेश्वर ने कहा उसे एकदम से उत्तर नहीं आया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था अब मेरी प्रोफेसी पूरी हुई, अब ये जाएगा राजा को बताएगा और राजा मुझे बुलाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। कई बार आपको आपके मिरेकल की बहुत अधिक जरूरत होती है और आप चाहते हैं अभी हो, और जब वो नहीं होता आप निराश होते हैं। लेकिन वो टाइम आपका गोल्डन टाइम होता है हमेशा। एक पुलिस फैमिली ब्लेस हो रही है इस जगह, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप पुलिस में, आपका परिवार ब्लेस हो रहा है। आप मुझसे मिले नहीं हो, अगर आप पहले पुलिस में हो मुझसे मिलो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इमीडिएट नहीं आया उसे उत्तर, एकदम से नहीं आया। जब उसने कहा कि अब मेरी बातें पूरी हो गई, वो लोग मुझे याद करेंगे, जरूर राजा को बताएंगे कि राजा एक बंदे ने हमें बताया था अंदर दर्शन का मतलब, और जो जो उसने बताया हमारे साथ वही हुआ। कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर इतने काम कर रहे हैं और अभी भी सिचुएशन वही है। सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही? आप दर्शन देख रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको, उसकी सामर्थ्य आपको महसूस होती है, आप उसकी पावर को अपनी बॉडी में महसूस करते हो, चर्च में प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी आप देखते हो वो सिचुएशन क्यों नहीं चेंज हो रही जो मैं चेंज होता देखना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने टाइम ठहराया उसे चेंज करने का। वो 101% बदलेगी, चेंज होगी, 99.99 नहीं। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप हौसला रखो शायद वो बदले ना, मैंने कहा 101%, 100 से भी 1% ज्यादा वो बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेक करता है आप क्या सोचते हैं, आपका ध्यान कहां पे है। जब उसने उत्तर दिया आपने क्या किया? मोस्टली लोग जब परमेश्वर का काम उनकी जिंदगी में हो वो गवाही नहीं देते, और वो गवाही तो बनी रहती पर अगली गवाही बनने में मुश्किल होती है उनको। प्रभु जब करे कुछ उसकी गवाही दो, फिर देखो वो क्या करता है आपके लिए। क्योंकि हर वो चीज जो आपके लिए करता है वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करता है, ना कि इंटरटेनमेंट करने के लिए। जब आप उसके राज्य को बढ़ाते हैं अपनी हर आशीष से, फिर आप क्या देखते कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। अपनी ब्लेसिंग और गवाही ग्रहण करो। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। सारे ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम रेशमा है ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2014 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ 2014 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ 2015 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਆਏਗੀ। लेकिन मेरा विश्वास है कि नहीं, परमेश्वर का वचन दसदा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तो मैं वो वचन मानते हुए आधे सिर ते ऑयल लगाया तो उस समय मेरी बेटी ने हिलना डुलना शुरू करता तो सांस लेनी शुरू करती। या जो ही मेरी बेटी 8 महीने की हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ
पावर का तब पता चलता है जब आप उसे यूज करते हैं कि ये वैसे ही है कोई चीज कि सचमुच इसमें परमेश्वर का हाथ मिला हुआ। तारीफ करो सब जन अनॉइंटिंग ऑयल के लिए परमेश्वर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 16 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਨ 1992 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2092 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ डिप्रेशन से चले गई, बहुत सारी आपके कहने का मतलब आपने ये लिखा है कि दुष्ट आत्मा ने खेलना बंद कर दिया, पर उसके इफेक्ट जो थे, उसका असर जो था आपकी जिंदगी में हमेशा रहता था, चाहे आप मसीह में थे। बीमारियों के रूप में, आपके घर के हालत के रूप में, आप खाना नहीं बनाते थे, ना खाना खाते थे। दुष्ट आत्मा सिर्फ जाहिर नहीं होती थी, बाकी सारे काम उसके वही थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡਾਂਟਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡਾਂਟੋਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ आप चर्च में कब आए थे? खामरा चर्च कब आए आप? 16 फरवरी 2014 2014 ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਡੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਡਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 92 ਚੋਂ ਸੰਨ 1992 ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ। ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ। परमेश्वर अभी क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? अभी आप फ्री हैं? अभी आप क्या हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਆ। आप खाना बनाते भी हो? हाँ जी। आप खुद खाना खाते हो? ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? ਹਾਂ ਨਹੀਂ। जिन्ने दुष्ट आत्मा ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਬਿਲकुल? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। और दुष्ट आत्मा ਦਾ कोई इफेक्ट नहीं है? ਹਾਂਜੀ। क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर ने कहा वो अपने उसने डिलीवरेंस दिया, उसने छुटकारा दिया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ो तो छुटकारे के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रचार किया? कि नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? लिखा उसने छुटकारे का क्या किया? बंदियों को छुटकारे का क्या किया? कभी भी दुष्ट आत्मा से परमानेंट आपको जो छुटकारा है वो कभी भी अकेली प्रेयर नहीं दे सकती। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं मैंने प्रेयर की है। अब आपका काम है चर्च आना, वचन सुनना, किसी भी तरह से इंटरनेट से सुनो, यूट्यूब से सुनो, रोज की रोटी जो भी मीडियम आपके पास है उसे सुनो, क्योंकि जो वचन आपके घर में आपके दिमाग में घुसता जाएगा शैतान नहीं आएगा। ये 100% मैं आपको बोल रहा हूं, केवल कभी नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान वहां आता जहां वचन नहीं। इसलिए लोग एक चर्च से दूसरी, फिर खेल खेल के, वो नया पास्टर आ गया, कोई बाहर से आ गया, वो उसकी मीटिंग में फिर खेल के अब मैं ठीक हूं, फिर खेल, फिर, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का प्रचार किया, प्रेयर नहीं की।
उसने 38 साल के रोगी को बोला तू चंगा हो चुका है लेकिन फिर से पाप, यानी उसको क्या किया परमेश्वर ने, उसको प्रचार किया ताकि वो प्रचार उसकी ब्लेसिंग को, उसकी चंगाई को, उसकी गवाही को, उसके छुटकारे को बना के रखे उसकी जिंदगी में। हालेलुया। वचन देने का मकसद क्या है? जो वचन आप सुनते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ, दाऊद की जिंदगी, ताकि आपका ध्यान कहां रहे? वचन के ऊपर, और शैतान आपकी जिंदगी में अविश्वास के कारण काम ना करने पाए। जब निराशा आती है तब सवाल आते हैं। क्या आते हैं? जब निराशा आती है तब सवाल आते हैं, क्यों ऐसा, क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वो ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्हें ऐ क्यों नहीं किया। क्योंकि जब निराशा आती तब सवाल आते हैं, लेकिन जब वचन आपकी जिंदगी में आते हैं तब सवाल खत्म हो जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? निराश लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मैंने कहा निराश लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, वो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, उसका काम नहीं कर सकते, चाहे उनको जितनी मर्जी जरूरत क्यों ना हो कि उनकी जिंदगी में निराशा खत्म हो। निराश नहीं कर सकते प्रभु का काम। आपको ऊपर उठना है निराशा से, डिप्रेशन से, अपनी जरूरतों से, अपनी चंगाई की जरूरत से आपको ऊपर उठना है। आपको शैतान को बताना है, अगर शैतान ने आपको एक थप्पड़ मारा है, सोना नहीं है, तो मारो उसे, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 4 मारो, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। निराश लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। हालेलुया। वो नहीं कर सकते काम परमेश्वर का। हर टाइम निराश रहोगे तो शैतान खुश होगा, परमेश्वर नहीं। चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों नहीं, वो नहीं है। अगर आपके बेबी नहीं है तो आप पहली औरत नहीं हो। हन्ना के भी नहीं था, अगर उसका केस सॉल्व हो गया तो आप भी उसी लाइन में हो। पर यह विश्वास की बात है, अगर हन्ना को उसने छोड़ा नहीं, पनन्ना का मुंह बंद किया। आप मैं अगले में आपको बता रहा हूं, आपका आमीन अगर ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। पनन्ना हन्ना को चिढ़ा तो सकती, पर डाइवोर्स नहीं दे सकती उसे। उसके हस्बैंड ने कहा मैं तुझसे दुगना प्यार करता हूं हन्ना। आपकी शादी किसके साथ हुई है? किसके साथ? मसीह के साथ आपकी शादी, आपकी मंगनी हुई है। आपका विरोधी जितना मर्जी बोल ले, पर आपकी मंगनी, आपकी मैरिज कैंसिल नहीं कर सकता। वो आपसे इतना प्यार करता है, आप सोच भी नहीं, आप समझ भी नहीं सकते। हालेलुया। निराश लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे कभी भी। आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, एक फैसला करना पड़ता है कि इस निराशा के बावजूद मैं उठूंगा, उठूंगी। आपको लगता है शायद ये हमारी जिंदगी में शायद परमेश्वर ने कोई काम मिरेकल कर दिया, निराशा खत्म कर दी और हमने सेवकाई शुरू की और हमने काम करने शुरू कर दिए क्योंकि प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया। ऐसा नहीं है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है निराशा वाले टाइम में भी, जब प्रभु कुछ नहीं कर रहा फिर भी आपको एक फैसला लेना पड़ता है कि नहीं, मैं खुदा के काम करूंगा। और फिर आप देखते हो निराशा कहां गई, खत्म, आपको नजर नहीं आ रही। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी, आप जानते नहीं प्रभु आपने क्या मांग रहे हैं। आपकी प्रार्थना सिर्फ ग्लोरी रह चुकी, महिमा रह चुकी, बेदारी आपकी प्रार्थना बन चुकी कि परमेश्वर बेदारी लेके आए, ना कि ये दे या वो दे, क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ आपका है। लेकिन क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ आपका है। आप मसीह के और मसीह परमेश्वर का है। क्यों शैतान को मौका देना छोटी सी बात के लिए कि आप प्रेयर छोड़ दो, आप फास्टिंग छोड़ दो, पवित्रताई वाला जीवन छोड़ दो। पवित्रताई वो आग है जिस आग को शैतान कभी नहीं बुझा सकता। इसलिए शैतान यूथ लोगों को सबसे पहले पवित्रताई से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं।
हालेलुया। पवित्रताई वो आग है जो हर गवाही को लेके आ सकती है, जो आपको बड़े स्थानों पर नियुक्त कर सकती है। आपका विरोधी आपको सता तो सकते हैं, आपको चिढ़ा तो सकते हैं, पर आपका टाइम आने वाला है, आपका शमूल आने वाला आपके हाथों में है। केवल लोग बोलते हैं आप हमारे सपने में आए, वो मैं नहीं, वो एंजल था, स्वर्गदूत था वो मेरा। वो शक्ल लेके आ सकता है, वो आपको बता सकता है खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, अगले तुम हो जो गवाही के साथ आ रहे हो। खड़े रहो, टोटल स्टैंड रहो, विश्वास में बने रहो, शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी लोग हैं वो अपना ज्यादा ध्यान जो वो प्रेयर रिक्वेस्ट पे नहीं लगाते। आओ चलो प्रार्थना करें, सब परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वीजा लग जाए, ये हो जाए। वो प्रेशर नहीं डालते परमेश्वर पे, प्रेशराइज नहीं करते परमेश्वर को कि ये काम हमें चाहिए। वो जानता है आपको चाहिए, आपको काम है सिर्फ थैंक्स करना, उसका बैठना प्रेयर में, उसको बताना कि उसने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं, उसको बताना कि वो कितना भला है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना प्यारा परमेश्वर है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है आपके लिए। हालेलुया। आप फिर देखने पाओगे अपनी गवाही की शक्ल वो किस तरह की है। मैंने कहा आपकी गवाही की शक्ल आप देखोगे वो किस तरह की है, वो लगती कैसी है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु ने इस दर्शन के लिए मुझे नहीं, उसने आपको चुना है बड़े काम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप वंडर्स करोगे, बड़े काम करोगे, अद्भुत काम करोगे आप। हालेलुया। हेलो हन्ना, पन्ना कुछ नहीं कर पाएगी, आप हन्ना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हन्ना, मैंने कहा। हालेलुया। पन्ना चिढ़ा तो सकती लेकिन खुदा के हाथ को दूर नहीं कर सकती। भाई जो यूसुफ के थे उससे नफरत कर सकते थे, उसे बेच सकते थे, खुदा के हाथ को उसके सिर से अलग नहीं कर सके वो। हालेलुया। आज से निराश रहोगे, प्रभु को प्रेशराइज करोगे, उसे बताओगे उसे कैसे काम करना चाहिए। आज मैंने आपको प्रेयर करने के लिए बोला कि प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा आप जैसे काम करोगे वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूं, जैसा आप जिस तरह से लेके जाओगे मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूं। आप देखोगे फिर आपकी लाइफ कितनी इजी है, वो स्ट्रगल खत्म हो चुके हैं, वो टेंशन खत्म हो चुकी है, वो फालतू की फाइट खत्म हो चुकी है। अपने दोनों हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक बन हो जाओ। हर एक व्यक्ति, हर एक जोड़ा जो बेबीलेस है, जो रहित है उस आशीष से, be blessed in the name of Jesus, be blessed in the mighty name of Jesus। आप अपनी ब्लेसिंग को, अपने गर्व को आप ग्रहण कर रहे हो, बहुत जल्द आप आ रहे हो गवाही के साथ। डॉक्टर कुछ भी बोले, आपको ये प्रॉब्लम है, आप मोटे हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, कुछ भी आप बोले, नो नो नो, आपका टाइम आ चुका है राइट नाउ। मैंने कहा आपका टाइम आ चुका है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। अपने दोनों हाथों को उठाओ सब जन, बोलो मैं तैयार हूं उन कामों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं। ऊंची 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 आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। ऊंची ऊंची ऊंची। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके टेस्टिमनी को मैं आते हुए देख रहा हूं अपनी आत्मा में। आप बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपके पास अगर एक एक करके आना शुरू करूंगा तो टाइम हो जाएगा। यस,
इस आपकी प्रभु की आंखें खुल जाएं जो परमेश्वर वाली होती हैं, शैतानी शारीरिक बंद हो जाएं। जब आप अपनी इन्हीं आंखों से देखें, खुदा की आग आपकी आंखों से देखें, साफ साफ देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने दोनों हाथों को उठाओ साथी प्रार्थना में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। You are so wonderful. Yes, 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 yes. Thank you, Lord. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र बड़े नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Receive right now in the name of Jesus. रसौलियां पिघले, गड्ढे के रोग जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको जल्दी गवाही के साथ वापस लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Receive your healing now, deliverance now. अभी ग्रहण करो छुटकारे को और चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। जो नहीं कर सकते आप करके देखो, उसे स्टार्ट करो। अपनी कलाइयों को मोड़ो, अपने घुटनों को मोड़ो। जो नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, सुनना शुरू करो। देखो परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ, वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथों को उठाओ, आपके हाथों के काम ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जिस जगह जाएं, आपके हाथों के काम फल दें आपको यीशु मसीह के नाम में। हर श्राप जो आपके हाथों पे रिलीज किया गया है और आपको फल नहीं मिलता, उस श्राप को मैं तोड़ता और बोलता हूं, आप आशीषित आपके हाथों के कामों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अगर आप बीमार है तो चंगे हो जाओ पवित्र नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। हर वो रोग जो आपके सिस्टम में अभी बाहर आए और सदा के लिए बाहर आए और चला जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। इस टाइम मेरी और नहीं देखना, अपनी बॉडी पे सिर्फ हाथ रख लो, अपनी प्रॉब्लम पे सिर्फ हाथ रख लो और बिलीव करो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं। आपके अकेलेपन से वो आपको आजाद कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम से वो आपको आजाद कर रहे हैं, आपके रास्तों को वो बोल रहे हैं। बिलीव करो, विश्वास करो। अपने हाथों को उठाते हुए सब चल ऊंची 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 आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में बिलीव करो, बिलीव करो। हर बीमारी को डांटो, हर दर्द को डांटो, उसे जाने के लिए बोलो। छुओ अपने रिश्तेदारों को जो फॉरेन में, जो हॉस्पिटल्स में, जो घरों में, जो बीमार हैं, जो नशों में, अपने हाथ को उठा के उन्हें छुओ। बोलो मैं डिलीवरेंस घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ, छूता हूँ जैसे मैं छू रहा परमेश्वर ने छुए। बोलो मांगो मांगो ऊंची 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 आवाज में। राइट नाउ 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 चर्च आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। अपने पेट पे हाथ रखो, अपने कानों पे हाथ रखो, अपनी आंखों पे हाथ रखो, जहां प्रॉब्लम है हाथ रखो। Receive your healing now. Receive in the name of Jesus.
जिन अंग को आप छू रहे हैं परमेश्वर नहीं छू रहे हैं। जिस चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर से छू रहे हैं। आप इस बात का यकीन करेंगे अपनी गवाही को देख के जरूर, मैं आपको बोल रहा हूं। जिस चीज को आप छू रहे हैं परमेश्वर से छू रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि वो गवाही ना आए जिसको आप छू रहे हैं राइट नाउ। अगले 2 मिनट वर्शिप में जाओ और छुओ हर वो चीज जिसे आप छूना चाहते हो। वर्शिप टीम सिर्फ वर्शिप करेगी, आप छुएंगे और प्रेयर करेंगे। उठा के बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए। अपने हाथ को लगाओ जहां आप छूना चाहते हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, वो कुछ भी उसे छुओ। हालेलुया। आप जानते जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं, मैं आपकी गवाही को देख रहा हूं। आपका आमीन छोटे हैं। आप जानते हैं आज प्रोफेटिक अनॉइंटिंग इतनी ग्रेसफुल है हमारे बीच में। जब मैं आपकी ओर आ रहा हूं, आपकी शक्ल देख रहा हूं, मैं आपकी शक्ल नहीं देख रहा हूं, आपकी गवाही देख रहा हूं। आपकी शक्ल के ऊपर लिखी है आपके रोने के दिन बीत चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथ इन दोनों भाइयों को बढ़ाओ, इन्हें इकट्ठा कर दो, इन दोनों फैमिलियों को बढ़ाओ। बोलो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए और कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करते हो हाँ या ना? आपने जो पिछली गवाही दी थी, शैतान ने अटैक किया। मैं आपको सलाह देता हूं, खड़े रहना, वो बड़ी होने जा रही टेस्टों में। अब आमीन छोटे हैं। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाई मैं आपको जानता तो नहीं हूं, हम मिले तो नहीं पहले। मैं पानी पास से आया हूं जी। आप हम मिले था नहीं? नहीं जी, नहीं मिले नहीं जी। मैं आपसे मिला तो नहीं हूं? नहीं। आपने आप कितने दिन हो गए आपको चर्च में आते हुए? मैं दूसरी बार आया हूं जी। आप दूसरी बार सिर्फ आए? हाँ जी। आप किसी से मिले नहीं? नहीं जी। किसी ने आपसे कोई चीज पूछी तो नहीं? नहीं जी। आपने चर्च का फॉर्म भरा है जो मेंबरशिप होता है? नहीं जी। अच्छा, आपने वो भी नहीं भरा है? नहीं जी। आपकी आंखें खुली थी जब मैं आपको देख रहा था यहाँ पे, और सब लोग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन आपकी आंखें खुली थी। पहले मुझे आप पे गुस्सा है। मैंने कहा ये बंदे की आंखें क्यों खुली, इसकी आंखें खुली क्यों है, ये आंखें बंदे प्रेयर क्यों नहीं कर रहा। और तभी परमेश्वर ने आपके बारे में मुझसे बात करनी शुरू की। परमेश्वर ने बताया कि ये इंसान अकेला है और लोग इससे लड़ रहे हैं।
अब रो मत, अब रो मत। आज आखिरी रात है आपके रोने की। मैं क्यों देख रहा हूं लड़ाई आपके 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 आसपास, और आप अकेले क्यों खड़े हैं? क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? मेरे घरदिਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ मैं आपको ये भाई परेशान है, यहां तक कि शैतान इसे सुसाइड करने के लिए बोलते हैं, इसे मरने के लिए बोलते हैं। हम मिले तो नहीं कभी? ਨਹੀਂ ਜੀ। मैं कैसे जानता हूं आप अकेले खड़े हैं और फाइट, आप दुनिया आपके साथ लड़ने की कोशिश कर रही, और आप अकेले अकेले खड़े हैं। ना तो आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास सोर्सेस हैं, ना आपके पास लोग हैं जो आपके साथ खड़े होकर आपकी हेल्प कर सकें। हाँ जी। मैं आपसे मिला नहीं हूं, नहीं जी। और परमेश्वर ने, मैं इसकी ओर देख रहा, परमेश्वर ने कहा इसको बोल कि इसे किसी की मदद की नहीं, मेरी मदद की जरूरत है, मैं इसकी मदद करूंगा। मेरे भाई आप याद रखना आज के वर्ड को, आज के लाइंस को। आपकी मदद, अगर आज आप यीशु मसीह को कंप्लीट जीवन दे दो, अगर आप बोलो कि हाँ परमेश्वर, और मैंने आपको जो मैं आपको, आपने फास्टिंग करनी, जो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बता रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। आप दूसरी बार आए हो, हाँ जी। आपने फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरा अभी तक, आप चर्च के मेंबर नहीं हो, नहीं जी। और आप, जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं, हाँ जी। आपको अगर दुश्मनों पे फतह पानी, आपने फास्टिंग करना, उपवास रखना अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। आप जैसे ही उपवास करके जाओगे, जो मैं देख रहा हूं, आपके एनिमीज आपको दिखाएं, आपको दिखेगा कि वो ज्यादा हैं और वो मजबूत हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, हेल्प आपकी स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होकर करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपके बच्चे इतने ब्लेस होंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको समझ आ रही? हाँ जी। आपके बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं आपको, मेरे को एक बेटा एक बेटी है जी। मेरे भाई हम मिले नहीं, नहीं सर। क्योंकि जब आप प्रेयर लाइन के लिए खड़े हुए थे, मैंने आपको पूछा आप जॉब कहां करते हैं, आप जॉब कहां, आप काम क्या करते हैं, कहां काम करते हैं? पठानकोट। पर मैं गुरदासपुर देख रहा हूं आपकी जिंदगी में। क्यों? गुरदासपुर का रहने वाला। जब मैंने आपकी ओर देखा, परमेश्वर ने कहा तुझे इससे बात करनी, क्योंकि ये ढीठ इंसान है, क्योंकि ये जिद्दी। आप जानते हैं पतरस एक ढीठ इंसान था, पतरस एक जिद्दी इंसान था, उसे जल्दी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब उसे हुआ, वो चेलों का सरदार था। आप ढीठ हो मैं जानता हूं, आप जिद्दी हो मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर ने, आपकी वाइफ क्या क्या बोल रही है, मैं सही बोल रहा हूं? हाँ जी। देखो, आप दो चीजें लिख के आप फॉर्म पे रख सकते हो, पर जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, आपकी पत्नी जानती होगी सिर्फ। जब मैं आपकी ओर देख रहा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके पति के कारण आपकी फैमिली का ब्लेस होने का टाइम आ चुके हैं। आपके पति जिद्दी रहे हैं, ये सखत इंसान है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये सखत इंसान है, पर मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर दया करने पे आता है, राइट नाउ, जो मैंने, जब आप प्रेयर लाइन में, जब मैंने आपकी लाइफ में देखा, मैंने क्या देखा कि परमेश्वर आपको इस तरह से छू रहे हैं कि ये भाई, आप बात करोगे इसकी, मैं आपको बता रहा हूं, इतना तगड़ा विश्वासी होगा ये। हालेलुया। आपके लोग आपकी बात करने वाले हैं, क्योंकि जो परमेश्वर आपको छूने वाले हैं, अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। आप जो परमेश्वर आपकी लाइफ को छूने वाले हैं, लोग आपके बारे में बात करने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, क्या चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करें? सर फर्स्ट रिक्वेस्ट साडे की साथ 4 साल हो गए साडी मैरिज ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपने हाथ को बढ़ाओ, मैं आपको बोल रहा हूं, एक बेटा एक बेटी। आमीन। आप समझ रहे हैं? आप गवाही के साथ यहां खड़े होंगे, हाँ जी। और परमेश्वर जो आपको छू रहे हैं, भाई मेरे भाई यीशु मसीह, तारीफ करो उसके लिए। वो ऐसा परमेश्वर है, प्रोफेटिक आईज। जब मैं उस भाई को, मैंने आपको देखा, अब जाने मुझे भाई पे गुस्सा आने लगा, मैंने कहा इसकी आंखें क्यों खुली? मैं बोल रहा हूं आंखें बंद करके प्रेयर करो, परमेश्वर ने कहा इस पे गुस्सा ना कर, ये अकेला है, ये लोनली, ये उदास है,
इसे बता कि मैं इससे प्रेम करता हूं। और जब मैं इस भाई को देख रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है ये जिद्दी है, ये ढीठ है, ये कड़क इंसान है, लेकिन इसे बोल मैं इसे छूने जा रहा हूं। और जब परमेश्वर को छूने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका विश्वास जो सबसे नीचे था अब सबसे ऊपर होगा। आपकी वाइफ आप अब थैंक्स करोगे प्रभु का इस बंदे के लिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। हम मिले नहीं, आपने कोई फॉर्म भी तक नहीं भरा, कुछ नहीं, आप दूसरी बारी आए हैं। दूसरी बार आए जी। मेरे भाई अपने हाथ फैलाओ, अपने हाथ ऊपर, ऑयल दो, ऑयल। आप जब जा रहे हो कि मैं लोगों को जब इतनी डिटेल में प्रोफेसी देता हूं, वो बोलते हैं कि किसी ने बताया होगा। आप अकेले आए चर्च में? आपको किसने बताया चर्च के बारे में? मेरा साला है जी, वो आता है परमानेंट जी। आपने कभी फोन किया मेरे को? नहीं जी, कभी नहीं किया। फेसबुक पे मैसेज किया? नहीं जी, कभी नहीं किया। आप जब वापिस जा रहे हो, हाँ जी। आप जीतने के लिए जा रहे हो। अपने हाथों को फैलाओ। अपने हाथों को उठाओ, सब जन। आप गवाही के साथ वापिस आए। मेरा परमेश्वर आपको लेके आए जल्द। इधर वाला हिस्सा, ये बहनें सभी, ये 3, 4, 5 बहनें, ये रेड, ये ग्रीन, अपने हाथों को उठाओ। हाँ, ये वाली, ये उसके पीछे जो स्पेक्स वाले, अपने हाथों को उठाओ। इस हिस्से में परमेश्वर काम करे। अपने हाथों को उठाओ, ये हिस्सा ब्लेस करो परमेश्वर के नाम को। अपने हाथों को उठाओ सब जन। ऊंची आवाज में। अगले वीरवार प्रभु भोज होगा और हम प्रभु के बड़े काम देखने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन। अगले वीरवार हम हीलिंग और चंगाई की मिनिस्ट्री में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं, जो पास्टर्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम स्पेशल एक चीज को अनाउंस करेंगे। उनको स्पेशल टीचिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा प्रभु के काम कैसे करने। अपने हाथों को उठाओ सब जन। बोलो, परमपिता परमेश्वर, जो मैं देख रहा हूं वो तेरे काम है। वो काम है जो होली स्पिरिट करता था अपने प्रेरितों के साथ, उनके मध्य में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। तारीफ करो परमेश्वर की वर्शिप में जाओ ताली के साथ। जिसको ये विश्वास है वो गवाही के साथ आना, वो डांस के अनुमोदित
7 साल से ये घोड़ियों के सहारे चलते थे और 7 साल पहले इनकी जो दोनों टांगे थी वो चलना बंद हो चुकी और ये 7 साल से लगातार ये इन सहारे के द्वारा चलते थे और आज जैसे ही ऑयल लगाया उस ऑयल लगाने के बाद ये चिड़िया हमारे हाथ में ये सब साल से ये बहन गठिए के प्रॉब्लम की कारण ये बैठ नहीं पा रहे थे, तो जैसे आपने बोला कि प्रभु आपको छू रहे, अब ये बहन बैठ सकते हैं। इस भाई का 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण के बाएं कंधे पे चोट लेकर के रोड पड़ गई थी, जिसमें ये अपने बाजू को ऊपर उठा नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसा ही ऑयल लगाया, कौन भाई, कौन वाले? अच्छा, आप करके दिखाओ जो आप नहीं कर पाते थे। पूरा करो जो आप नहीं कर पाते थे। इनका रोड पड़ी हुई है कंधे के ऊपर, लेकिन आज अभी जैसे प्रेयर हुई, प्रार्थना के बाद इन्होंने हाथ अपने ऊपर उठाना शुरू कर दिया। ये तारीफ नहीं, अपने हाथों को उठा। मुझे मैं जा रहा था, लेकिन कहते ना परमेश्वर वो आपको जबरदस्ती देते हैं। आप बोल दो बस प्रभु कहता नहीं, रुक जा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। फिर से अपने हाथों को उठाओ, आप एक ड्रेस में जाओ। यस, मांगो मांगो मांगो। ਵੇਖੋ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਤੋਂ 6:15 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।